I would say that मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए होता था that I could not qualify prelims in both of my attempts. तो फर्स्ट स्टेज पे ही क्वालिफाई ना कर पाना fills you with a lot of self doubt कि am I even eligible? One source for one subject should be the basic thing and multiple revisions of that is very important. मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो मैं उसको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन को एनालिसिस करना, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको ज़्यादा ध्यान दिया, उसके बजाय कि मैं राइटिंग पे फोकस करूँ पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही एक यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो समझना ही चैलेंज है। Hi, welcome to another edition of Toppers Talk. आज हमारे साथ we have two rankers. Let me introduce them. First is Harshita. She's from Ranchi and she is 410th rank. Harshita, congratulations. Welcome to the talk. And next is Neeraj. Neeraj जी भोपाल से हैं और नीरज जी का रैंक इज 964. Congratulations, Neeraj. Welcome. And I'll start with both of you. दोनों से एक साथ शुरू करते हैं. I'll keep it bilingual also. How do you feel? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ठीक लग रहा है? बस ठीक ही लग रहा है? सर, और बेहतर हो सकता था। और बेहतर हो सकता था. Okay. Harshita, how are you feeling? So I would say same. I'm feeling good that at least I am in the list and I'm grateful for that. But I think I'll work harder and do better in my next attempt. Good. I mean, it's very quite optimistic. And for the listeners, let me tell you, this was Neeraj's 6th attempt and Harshita's it was 3rd attempt. I really admire the patience. And let me start with a very simple question. It's been a long journey, right? Harshita, 3 attempts, Neeraj, 6 attempts. बहुत लंबा सफ़र था. इस लंबे सफ़र में बड़ा उतार चढ़ाव रहा होगा, ऊपर नीचे. ठीक है, चढ़ाव तो ठीक है. बस इस लंबे सफ़र में कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव लो पॉइंट, राइट? कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा यार, चलो यार 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 साल निकल गया, 6 साल निकल गया, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है. सो हाउ डू यू मैनेज दैट लो पॉइंट्स इन लाइफ? 7 साल में लो पॉइंट्स जो उतार होता है उसको हाउ डू यू मैनेज दैट? कैसे मैनेज किया उसको? सर, थोड़ा आइसोलेशन में रहा मैं। सॉरी, आइसोलेशन में रहा। फैमिली जो थी काफ़ी सपोर्टिव रही। कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमेशा का साथ दिया। जब लोवेस्ट जब रहता है, जब कोई नहीं था साथ में, तो मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, कुछ लोग हैं जिनके लिए मुझे करना है ये। एटलीस्ट मेरे लिए नहीं कर पा, अगर करने का मन नहीं हुआ या फिर खुद का लगा कि हाँ, खुद पे जब डाउट आता तो फैमिली जो सपोर्ट कर रही है उनको फुलफिल करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता था। सो बेसिकली फैमिली और दोस्त ही आपके सपोर्ट सिस्टम थे. हाउ अबाउट यू हर्षिता? हाउ डिड यू मैनेज योर लॉस? I would say that मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए होता था that I could not qualify prelims in both of my attempts. तो फर्स्ट स्टेज पे ही क्वालिफाई ना कर पाना fills you with a lot of self doubt कि am I even eligible to strive further? So, but I had that determination that I will not give up. I was doing my master's side by side and I realized that I can manage my studies simultaneously. And वो motivation और वो discipline, when others show trust in you and you feel that you have the potential but somehow you're not able to do it, but you cannot give up because you can do it. So that feeling, and so I have been a good student, so there were a lot of hopes attached to me and I could not let them down. Expectations and even Don't family you think members. expectations are kind of a burden? You know, घर वालों की जो उम्मीदें होती है ना, sometimes it weighs you down. लगता नहीं ऐसे? Somehow, sir, it is true, but it's also because they love you and they feel that you have the potential. Okay. तो वो आपके लिए confidence का काम करता है कि तुम कर सकते हो. That is why people are trusting and expecting you to do that. So that is also a kind of push that you have that potential and you should work for it. Good, amazing. So family, friends, expectations, trust. That's how you managed your low points. So basically, this for everybody. I mean, for listeners. I mean, some of you will be taking multiple attempts. The issue here is when you do this multiple attempts, when you should not give up hope, and you should always rely on your family, friends, because that's your biggest source of strength, support system. That's one. Okay, now let's talk about your journey, the preparation part, the key part of it. Okay, it's a long haul. I'm sure at every attempt, हर एक attempt के साथ साथ आपने अपनी गलतियों से कुछ तो सीखा होगा. So सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि sources कहाँ से पढ़ें? How should I be selective? What should I read? ठीक है. So let me start with Harshita. Harshita, what was your sources? How did you manage your stuff? How did you manage your optionals?
How do you manage your other papers? What was your sources? सर व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट दिस एग्ज़ाम, सब बोलते हैं कि एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो समहाउ आई डिसाइडेड कि पहले आई विल जस्ट ट्राई टू लिमिट माई सोर्सेज. आई विल डिसाइड कि कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं एंड देन आई विल स्टिक टू इट. Now I have a question here. How did you decide that क्या पढ़ना है? See, the biggest problem in preparation is sub. It's not about what to study. It's about what to leave. हमें छोड़ना क्या है? The moment you said ना, I have to limit. So that is something which everybody would like to know. How did you identify ये मुझे छोड़ना है? This is the area which I have to leave out. How do you do that? सिलेबस और PYQ जो सबसे पहले देखनी चाहिए, वो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम वो सबसे आखिरी में So देखते हैं. basically, what you're trying to tell me is like PYQ is a source from where we can limit. And the problem with most of the aspirants are they leave out the PYQ part. They will solve the PYQs, but they'll never identify, okay, PYQ से हम ये भी कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमें पढ़ना है, क्या चीज़ हमें छोड़ना है. Okay, so let's move on from there. हाँ. So first thing what you do, you limited your scope. कि let me identify ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ मुझे पढ़ना है. Okay. I decided that what are the subjects I need to have to get through with the NCERTs also. For example, I did not read the NCERTs of polity because I had the background. I did my graduation in political science. I decided to go with geography, history also very selective, only 11th, 12th. So I decided what are my strengths and where I can skip the basic 5, 6, 7, 8 के NCERTs. So that was first, I think. रिलाई करने से ज़्यादा कि किसी ने आपको बता दिया दैट दीज आर द सोर्सेज, आप ऑल्सो यू डू ऑल्सो चेक दैट आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. सो वो सोर्सेज एक बार डिसाइड हो गए, व्हाट स्टैंडर्ड बुक्स आई नीड टू पिक, आई चोज टू लिमिट इट, आई नॉट टू स्विच इट इफ आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट. क्या होता है कि पहले अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता, देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सोर्सेज कि क्या पता इस बुक से क्वेश्चन नहीं आते हो इसलिए नहीं हुआ. But when you revise that book multiple times, you will see that सब कुछ you can, because everything is applied, straight तो कहीं से नहीं आएगा. तो just taking in note the sources which others follow. कुछ तो बुक्स ऐसे हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, विच आर वेरी स्टैंडर्ड, यू कैन नॉट जस्ट एस्केप इट, वो सब पढ़ते हैं. तो अगर वो पढ़ के इवन इफ यू फील दैट इफ यू रिवाइज इट थरली यू कैन मेक इट, I would suggest that one source for one subject should be the basic thing, and multiple revisions of that is very important. So one source, multiple revisions, that's Harshita's mantra. Let's see, Neeraj, what was your strategy? सर मैं भी जनरली NCERTs को ही फॉलो किया हूँ, और जो क्लास नोट्स होते थे जैसे मैं कोचिंग किया हूँ, तो उनको जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है, उसी के साथ जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्या क्वेश्चन पूछे गए प्रीलिम्स या मेंस में उसको सॉल्व करना है. उससे एक एरिया डिसाइड करना है कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उससे ही हमको ये भी पता चलता है कि करंट अफेयर्स में क्या करना है और करंट अफेयर्स में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर रीडिंग जो है उसको कैसे लिमिटेड करना है, उसको कैसे कंसाइज वे में करना है. तो अच्छा, न्यूज़पेपर की जब बात आती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि क्या पढ़े न्यूज़पेपर में, कितना समय दे न्यूज़पेपर में, बिकॉज न्यूज़पेपर इज न्यूज़पेपर. सुबह उठते साथ ही द मोमेंट इट्स अ बिग बंडल, राइट? संडे को इतना मोटा सा इशू आता है, क्या पढ़े? सो हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि कितना समय देना चाहिए न्यूज़पेपर के लिए, क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, क्या चीज़ को मैं सेलेक्ट करूँ, न्यूज़पेपर से क्या आप नोट्स बनाते थे, नहीं बनाते थे? दीज आर नॉर्मल क्वेश्चंस एवरीबडी हैज़. सो तुमने क्या किया नीरज? सर न्यूज़पेपर का ऐसा है कि जब स्टार्टिंग की प्रिपरेशन शुरू की है, तो उसमें जैसे अगर पॉलिटी अगर पढ़ना आपने शुरू कर दिया, तो अगर कोई आपके टॉपिक जो आपने जो कोर्स सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही तो उसको ऐड ऑन करते जाओ अपने नोट्स में, और धीरे धीरे जैसे जो न्यूज़पेपर है उसको जो आपके जो कोर्स सिलेबस में टॉपिक चल रहा है उसको करो, और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें आपको लगभग 45 टू अराउंड 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है. उसके नोट्स नहीं बनाता था मैं सर, मैं सिर्फ वो टॉपिक लिख के रखता था कि किसी एक जो करंट मैगजीन है उसमें अगर वो चीज़ें आ रही है तो मैं वहाँ से उसको ठीक से रिवाइज़ कर लूँ. अगर कुछ चीज़ें अगर मैगजीन में नहीं आई हैं तो उसको मैं खुद से उसके ऊपर अपना एड ऑन उसी मैगजीन में कर लूँ. Same strategy, or you had a different perspective on newspapers? So while reading newspaper, I used to make sure कि I understand the issue. But कोई अगर मुझे कोई अच्छा फैक्ट मिल गया या कोई बहुत अच्छी केस स्टडी मिल गई, आई यूज़ टू नोट इट डाउन, बिकॉज वो मेंस में कोट करने में काम आती है.
तो एकदम सेक्शन वाइज आई डिड नॉट मेक नोट्स, आई ओनली मेड नोट्स ऑफ सम फैक्ट्स, कुछ अच्छा वन लाइनर मिल गया विच आई कुड मेंशन इन माय एसे और समथिंग, उस तरह के मैंने नोट्स बनाए थे. बाकी आई जस्ट रेड द न्यूज़पेपर फॉर So अंडरस्टैंडिंग. basically, you made very limited notes out of newspapers and used it only as a supplement, not as the main source of it. Okay. All right, Neeraj. Now, great. Now, Neeraj, you had history as an option, right? So, कहाँ से मतलब it must have helped you in your papers, in the GS papers also, other papers also, history, right? So, what was the basic sources for history? सर हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी उनको फॉलो किया, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी मैंने जनरली वही किया है. उसके साथ ही जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए उपिंदर सिंह की जो बुक है, उसके कुछ लिमिटेड चैप्टर. अच्छा, उपेंद्र सिंह, इतनी एडवांस्ड बुक, एंशिएंट टू अर्ली मेडिवल इंडिया, सर कुछ वो काफ़ी वास्ट बुक है, लेकिन उसके कुछ टॉपिक जो है स्टार्टिंग इतनी के, मोटी सी बुक है, देख के डर लगता है उसको. सर वो स्टार्टिंग के जो पेजेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने अर्ली हिस्ट्री के बारे में जो बताया हुआ है वो मैपिंग के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है. तो मतलब ऑप्शनल के अलावा आपको जीएस में भी हेल्प करेगा उपेंद्र सिंह की बुक. सर जीएस के लिए मुझे इतना नहीं लगता कि कॉस्ट बेनिफिट उतना है. ओके. ऑप्शनल के लिए ये बुक ज़रूरी हो जाती हैं. एंड व्हाई यू टेक हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल? सर मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है हिस्ट्री, और उसके साथ ही यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी जगह जैसे GS1 हुआ और प्रीलिम्स हुआ तो उसमें काफ़ी हेल्प रहती है. इसको देखते हुए मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट किया. ओके. अच्छा, ये सारे तो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी. दिस इज समथिंग व्हिच व्हेन यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स आल्सो यू मैप इट अलोंग विथ योर मेंस एंड गो अलोंग. बट योर बिगेस्ट चैलेंज इज द अदर टू पेपर्स, दैट इज essay which is 250 marks, ethics which is again 250 marks. How did you manage that? Because usually होता क्या है कि these are the two big papers that actually decides what happens, right? So how did you go about? मतलब ऐसे के लिए अलग से कुछ किया आप लोगों ने साल भर? Did you do something? Ethics के लिए कुछ किया? What was your strategy for these two papers, ethics and essay? सर ऐसे और एथिक्स के लिए दोनों ही, मतलब मैंने दोनों को कंबाइन करके लिया है. वो जैसे Combine करके? जैसे मैम ने बताया कि जो केस स्टडी हुई तो उसको दोनों ही जगह यूज़ किया जा सकता है. कुछ केस स्टडीज है जो ऐसे में भी यूज़ हो सकती है और एथिक्स में भी हो सकती है. तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो मैंने रखे अपने किसके शॉर्ट नोट्स बनाते? केस स्टडीज केस स्टडीज़ के, तो वो कहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो सर मैंने इसके लिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है. और एथिक्स ऐसे के लिए अलग से कुछ जो टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, उस पर प्रैक्टिस किया है. प्रैक्टिस मतलब साल भर प्रैक्टिस करते गए या? सर मंथ में एक ऐसे लिख लिया. अच्छा, महीने में एक बार ऐसे लिख लिया. हाँ, जब मैंने ऐसे को पूरी तरह, जब मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया, जब पता लगा कि मतलब कि अब मेंस का सीरियस प्रिपरेशन करना है, तो महीने में स्टार्टिंग में एक किया, फिर वीक जब जैसे जैसे मेंस पास आ रहा है तो उसको एक वीक में कर दिया, फिर बाद में एक वीक में 2 ऐसे लिखे. तो लगभग 20 ऐसे लिखने के बाद एक आइडिया अच्छा, हो जाता है 20 essay के समझ. बाद थोड़ा कंफर्ट. ऑल राइट. सो बेसिकली तुमने एसे और एथिक्स दोनों कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी बना ली थी. दैट्स यूनिक. पहली बार सुन रहा हूँ, बट इट्स यूनिक. नाइस. Harshita, what was your way of going ahead with essay and ethics both? The problem was coming that I could not maintain the flow while writing my essay, and I was not able to understand the demand while writing an essay. मैं करती क्या थी that just to make it very valuable, I अपना input और अपना analysis डालने से ज़्यादा fact, examples, I used to write that. So that never looked like a good essay. So I was practicing, and then when I compared my essay with some toppers essay, or my friends evaluated it, I got it evaluated and my friends made me understand that you need to write your analysis. हम ऐसे में सर कभी कभी ये गलती करते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फैक्ट कोट कर देंगे, उसके बारे में उस टॉपिक को ही समझा देंगे, तो हमें ऐसे में अच्छे मार्क्स आएंगे. बट आई डोंट थिंक दिस वर्क्स आउट. आई बिलीव दैट आप उस चीज़ को कितने डायमेंशंस में खोल पा रहे हो. अगर इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन दैट थिंग एंड यू पुट योर ओन एनालिसिस rather than just you, of course you need to supplement it with your or back it with some facts or examples, but first thing you need to put your analysis. So that was something I changed after my prelims के पहले तक मैंने जो essays लिखे थे that was very factual, filled with examples, but after prelims I slowly developed that habit of sir I compared my essays with others. Myself. कभी कभी दूसरे ने बताया तो हमें लगता है कि वो उनका एनालिसिस है, बट आप खुद जब बैठ के अपने ऐसे को पढ़ते हो एंड व्हेन यू रीड द सेम टॉपिक ऑफ समवन एल्स एंड देन यू सी द डिफरेंस इन मार्क्स व्हाई इट इज़ सो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने क्या गलती की. ऑल्सो
फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया दैट सी तेरा एनालिसिस नहीं है इसमें, सो यू नीड टू ऐड दैट. तो उस तरह से आई इवॉल्व्ड एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद ऐसे. So this for all the listeners is a very good advice that Harshita has. Essay is not about facts. Essay is about analysis. So more than facts, try to have that critical thinking. Try to have that analysis that actually helps. That's a good point. And Neeraj has a lovely strategy. Like he mixed preparing essay and ethics together. That's a nice way to save time also. समय भी बचता है नहीं? Because ethics में you study quotes, you study philosophers' ideas, कहीं ना कहीं उसको use किया होगा. Even you must have done the same. Political science, thinkers. Okay, talking about thinkers, any recommendation for the audience who have Pol Sci as an option? Books for thinkers or sources for thinkers? Because thinkers is like a Waterloo, right? It's at one of the tough sections in PSIR, right? Sir, I would say O.P. Koba की एक book आती है. That is a very good book. I read that in my graduation and I made notes of it. तो graduation में ही मैंने optional के टाइप से थिंकर्स तो अच्छे से करे थे. तो O.P. Koba was a very good book. तो मैंने वहाँ से पढ़ा था. बाकी सर मास्टर्स में जब करा, आई डिड इट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वी आर प्रोवाइडेड विथ रीडिंग्स. Okay, all right. सप्लीमेंट Were करा. they good enough? Yes, sir. It helped me out in structuring my answers. And then when I joined the test series and wrote answers of my, sir, ये होता है कि optional में पढ़ते तो सब हैं, but the approach of writing differs. All right. And thinkers are something which you need to quote in every answer. Scholars and thinkers. तो मेरा ये रहता था कि हर topic के लिए I used to select a few thinkers that and used to maintain a small diary जहाँ मैं उनको लिख लेती थी. That I need to quote only that, क्योंकि लिखते वक्त जब आप सोचते हो किनको करूँ तो that wastes a lot of time. तो वो पहले से ही मैंने एक डायरी में हैंडी रखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टॉपिक पे I'll quote this thinker and I'll write this. Okay, great. So maintained diary and systematically went about. All right. Acha, let's come down to one crucial area: answer writing. When did you all start practicing writing that? Because सबसे बड़ा issue ये होता है कब शुरू करें answer writing? शुरू से करें, daily एक लिखें, हफ्ते में 3 लिखें. When to start answer writing? When did you guys actually start it? Sir, I started my answer writing once I was done with 40% of the syllabus at least. Okay, so 40% of syllabus, then she started writing answers. Okay, you broke one big myth seriously. लोग बोलते कि immediately शुरू कर लो, right? Neeraj, when did you start? सब जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो मैं उसको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन को एनालिसिस करना, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसको ज़्यादा ध्यान दिया, उसके बजाय कि मैं राइटिंग पे फोकस करूँ पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही, एक यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो समझना ही चैलेंज है. सो बेसिकली तुमने क्या किया, वो टॉपिक ख़त्म किया, पहले टॉपिक ख़त्म करने के बाद PYQs देखे, उसके बाद आपने आंसर लिखना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया. यू स्टार्ट वेरी अर्ली, 40% सिलेबस के बाद. नाइस. What happens is that हमें ऐसा बहुत लोग बोलते हैं दैट आपको तुरंत लिखना है क्योंकि आप जब लिखोगे तभी सीखोगे. बट मेरा ये रहता था स्ट्रैटेजी दैट समथिंग आई शुड नो अबाउट. तो मैं जैसे अगर जोग्राफी के भी 40% सिलेबस ख़त्म कर चुकी हूँ तो आई विल सी दैट उस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं एंड देन आई विल राइट ओनली दैट. क्योंकि स्टार्टिंग में व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट तो बिल्कुल ब्लैंक लगता था बिकॉज आई कांट इवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इफ़ आई एम नॉट हैविंग द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ इट. तो ये गलती मुझे लगती है कि इमीडिएटली डे 1 से शुरू किया, डे 2 से आंसर लिखने बैठ गए. हाउ कैन समवन डू दैट? तो Fair enough, but people have this notion कि I have to start writing immediately शुरू करें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड ताकि आप कम से कम क्वेश्चन की डिमांड को समझ जाए एंड देन यू राइट एनीथिंग सो दैट यू ब्रेक दैट inertia ऑफ स्टार्टिंग. Yes. That is very, very important. You understand topic, then you start writing. I like Neeraj's idea. You finish a topic, एक topic पढ़ लो, उसका PYQ देख लो, questions को समझ लो, फिर आप लिखना शुरू करो. Now then this brings me to next big topic, test series. Did you guys take any test series? हाँ, yes sir, for means I did. Okay. ये सर मैंने मेंस के लिए लिया था टेस्ट. Was it helpful? सर एक पेयर ग्रुप में जो मेंस दे रहे साथ में, उनके साथ अगर लिखने को मौका मिलता है तो एक कम्पिटिटिवनेस मिल जाता है, वो जो इन्वायरमेंट होना चाहिए तो उनसे सीखने को ही मिलता है. तो ये हेल्प रही थी टेस्ट सीरीज़ की. So test series helps you in placing yourself in a competition and peer group के साथ क्या it helps you. And what's your take, test series? Sir, I would say it was kind of a mixed thing.
मुझे किसी किसी जगह पे लगा दैट इट हेल्प मी आउट, बट मुझे ऐसा लगता है दैट व्हेन माय फ्रेंड्स इवैल्यूएटेड माय आंसर्स दैट वाज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि टेस्ट जब किसी कोचिंग से इवैल्यूएट होके आता है इट्स वेरी गुड, इट्स समथिंग, बट एक जो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम होता है ना, जो योर फ्रेंड नोज, जो उनको भी स्ट्रगल हो रही है उस चीज़ में, सो दैट for example that essay wala area which I could understand, that was helped me out with one of my friends. So basically, you both have been talking about friends and friends and friends. So that means you should give all your preparation credit or success credit to your friends only, I suppose. Neeraj also said, friends are my support system. She's saying friends were my analysis and critiques. Okay, nice. All friends. Okay, great. Good. You should have friends. Friends actually help also. All right. Now, I'll come to a very touchy subject. Okay, this was your third attempt. What went wrong in the first two attempts? Was it your prelims that was a challenge, or what actually happened the first two attempts? Prelims, I could not qualify both of my prelims. Okay. And I would say that the biggest challenge was my confidence. I never had a background. There was no one to guide me in the beginning. तो मैंने जैसे टॉपर्स को सुनती थी, everyone was saying कि current affairs is very important. Current affairs is 70% of the syllabus. And now, what is your take? I won't suggest to waste so much of time in current affairs. Loudly. I will not suggest to waste so much of time in current affairs because that costed me my attempts. Yes, yes, I would say yes. Okay. Because I was devoting so much of time in current that I could not revise my static very well, and that is the reason I could not. I made that RIT wala question wrong in 2022. So that was the moment I realized that no, current, even if you're studying, you're not getting questions out of it, but static is something which is in your control. Please control the controllables, do what is in Oh yes, that's I mean that's what people miss. Actually, जो चीज़ आप control कर सकते हो, उसको control करने के बजाय they try to go out of the way and do things which are not needed. Do you agree with that, Neeraj? बस में सर मैं सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या चल रहा है। अगर कोई गवर्नर का इशू है तो मेरे को उसका कोर टॉपिक पता होना चाहिए कि उसमें सिलेबस में लक्ष्मीकांत में उस गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी गई है, नियुक्ति का होगा या फिर रेजिग्नेशन का है, कुछ बिल का है, तो वो एरिया पता होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी न्यूज़ को हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, वो नहीं पूछा जाता है। Okay, all right, makes sense. So this is something you realized after two attempts. Yes, actually I gave 2021 वाला attempt, and दोनों attempts के बीच में there was hardly 7 months because 21 वाला attempt got delayed. तो and I could not qualify prelims, तो वो डर हो गया अंदर से कि prelims में ही रुक गए हैं तो prelims में ही बहुत सारा time देना है। So CSAT, luckily I could qualify, but in my first attempt I was at the border. Also I would say कि अगर reading comprehension में आपकी accuracy बहुत अच्छी है, even if you are able to do 20 to 23 questions correct, you are in very good position. And I would say कि बहुत लोगों ने भी बोला कि मेरा maths बहुत अच्छा है, तो आई विल फोकस ओनली ऑन मैथ्स एंड आई जस्ट डोंट बॉदर अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है और पढ़ के अगर ऑप्शन गलत हो जाए तो दैट वेस्ट टाइम, उतने में मेरा मैथ्स का 2 क्वेश्चन बन जाएगा। आई डोंट अग्री, क्योंकि मैथ्स कभी कभी बहुत टफ आ जाता है। इस बार का सीसैट में ऐसा था कि रीजनिंग वाज आल्सो वेरी डिफरेंट, अनप्रेडिक्टेबल, मैथ्स वाज वेरी टफ एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेव्ड मी। Okay, amazing. And that must be a forte also, because pol science, humanities, you must have read a lot of things. Yes. That must have been easy for you, right? More than subject, I would say practice. I practiced a lot of papers. And what was your source of practice? So PYQs of UPSC, full length previous years questions, क्योंकि जब मैं कोचिंग के टेस्ट लगाती थी तो मेरे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे सही होते थे, बट जब मैं यूपीएससी का रियल एग्ज़ाम दे के आती थी तो मेरे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में भी गलत होते थे, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे ही गलत हो जाते थे, तो एक्यूरेसी ख़राब हो रही थी। तो PYQs को ही मैं फुल लेंथ लगाती थी एंड आई यूज्ड टू सी कि किस तरह से ऑप्शंस फ्रेम होते हैं। एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ टॉपिक ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हमने जीएस में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रखे हैं, बट उस पैराग्राफ में 4 ही मैंशनड है और अगर ऑप्शंस में 4 के अलावा कोई है तो हम वो भी सही मान लेते हैं क्योंकि हमने कहीं और पढ़ा है, बट दैट इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉम्प्रीहेंशन, तो हम उसे भी सही मान के एवरी ऑप्शन इज करेक्ट कर देते हैं। सो मेक श्योर कि जो कॉम्प्रीहेंशन में मैंशनड है आप उसी को stick to the comprehension. Yes. That is the thing I would say helped me in doing CSAT. Neeraj, 6 attempts. So पहले 5 में क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ा गया सब? 2018 में जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो पहली बार तो एक यूपीएससी की कैसे एग्ज़ाम होता है वो पता करने के लिए
बस जानने के लिए दे दिया था। पहली बार फिर सेकंड अटेम्प्ट सीरियस दिया था तो उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, वो मेंस का कॉल आया तो उस टाइम मैंने ये गलती की कि मेरा एथिक्स रेडी नहीं था और मतलब एक कुछ पर्सनल Alright, इंसिडेंट हाँ, हुआ हाँ। तो उस कारण मैं नहीं कर पाया था, तो उसमें मेंस क्लियर नहीं हो पाया। और थर्ड अटेम्प्ट में सी सेट मुझे हर्डल बना, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा जो रहा कि GS3 के कुछ टॉपिक थे और GS4 को मैं सीरियसली किया, तो 21 में फिर इंटरव्यू कॉल आया है। उसके बाद तो फिर मतलब मेरे को लगा कि इस बार हो जाएगा, अब नहीं करना है, ये लास्ट हो गया। Okay. फिर लेकिन क्लियर नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद फिर से सी सेट 2022 में मेरे लिए हर्डल बन के आया। सीसैट ही हर्डल रहा सब और जगह। मैं 2 अटेम्प्ट मुझे सी सेट ऐसा क्यों, मतलब सीसैट में क्या इशू क्या था? तैयारी के लेवल पे तो ठीक था, लेकिन सी सेट को जो एक शांत दिमाग चाहिए होता है और जो पेपर 11:30 बजे से होता है, उस मेंटालिटी में आने के लिए मैं उस टाइम मतलब फुलफिल पूरा अटेम्प्ट नहीं दे पाया और जो प्रेशर हो रहा है सी सेट का, वो पेपर को मैं दे नहीं पाया। अगर उसको शांत दिमाग से करूँ, फर्स्ट टू 80 क्वेश्चन तक अगर मैं पेपर पूरा देख भी अगर निकालने के लिए अगर पूछा जाएगा स्ट्रेटेजी के लिए भी सी सेट की, अगर आप फर्स्ट से लेकर 80 तक क्वेश्चन अपने फाइंड कर पा रहे 45 to 50, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब अपन अपना पहले से माइंड बना के चले जाते हैं कि मुझे मैथ्स ही अटेम्प्ट करना है, हाँ। तो वो गड़बड़ होता है, मतलब पहले से यू शुड नॉट मेक अप योर माइंड कि जाते साथ ही मुझे मैथ से शुरू करना है, सो यू शुड गो विद ओपन माइंड, है ना, सीसैट के लिए। तीनों ही पोर्शन पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यू शुड नेवर गो विद अ सेट माइंडसेट कि मुझे मैथ से ही शुरू करना है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। वहाँ जाके आप देखो, अपने आप को संभालो, लुक एट द पेपर, देन यू डिसाइड कि कहाँ से शुरू किया जाए। बिकॉज द आइडिया इज टू क्वालिफाई, नॉट टॉप इन सीसैट, राइट? लोग वही गलती करते हैं, दे वांट टू टॉप इन सीसैट, व्हिच इज लाइक नॉट द ग्रेट आइडिया। आई मीन यू शुड स्टार्ट विद व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, बिकॉज द आइडिया इज टू क्वालिफाई. All right. Okay, now let me talk about something else. It's a long thing, right? You prepared for such a long time. Now, how did you manage that stress? You know, stress is a very big issue. Stress, uncertainties, hoga, nahi hoga, it stresses you out, right? So, what was your stress thing? I mean, how did you manage that long stress? You know, one has to be mentally healthy also. It takes a lot of toll mentally also. Especially Neeraj ko to laga hoga because 5 saal, it must have taken a great mental toll, uncertainty. So, नीरज कैसे, हाउ डू यू मैनेज? सर 2020 से 2021 का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी चैलेंजिंग था। उसके बाद से फिर मैं एक डिसीजन लेके फिर वापस दिल्ली आया, फिर वहाँ पे अपने जो भी मेरे ग्रुप रहा उनके साथ ही, क्योंकि मेन था कि वो भी मेरी तरह से ही सिचुएशन थी। सो बेसिकली पीयर सपोर्ट वाज द वे यू हैंडल स्ट्रेस. हर्षिता? सर आई वुड से दैट स्ट्रेस के लिए आई यूज टू डिवाइड माई डेज. बहुत लोग करते हैं कि एकदम आइसोलेट कर लेते हैं खुद को. आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, इंटरैक्ट्स विद एवरीवन. तो थोड़ा सा बैलेंस बनाया अपनी लाइफ में, दैट 5 to 6 days I'll study really well, and the 7th day I need a break. I'll go out, I'll enjoy. You should listen to this. This is very important. 5 to 6 days study, 1 day in a week you should take a break. Agreed? It is important. Yes, I completely agree here, because people have this thing that I have to be into it, but ऐसा नहीं है. We are humans. 5 and 6 days, 1 day you should take a break. Good. Exactly, sir. So and that also gives you a push कि आज मैंने break लिया है तो next day I have to study. You are more fresher. You are much more fresher. मतलब एक दिन का break है, you are much more fresher. You look at things with a new perspective. It helps also. Great, good. And not compromising sleep. Not. I've seen. Yes. I was about to come to that, because people have this big myth. यहाँ बहुत बड़ा एक myth है कि मुझे दिन में 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 14 hours कम से कम. Seriously, is it possible? So it might be that a person can study for 2-3 days, but never for 2-3 years. बिकॉज क्या होता है कि मैं तो प्रीलिम्स के टाइम पे सर हार्डली 7 से 8 घंटा मेरा हो पाता था, क्योंकि लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, उसमें आप फ़ोन नहीं चला सकते. So basically, Harshita has 2 good points. You should never compromise with social life. That's good. Second one is sleep. Sleep is very important. इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो याद करते हो दैट यू नो गेट स्टोर्ड इन योर Agree with सबकॉन्शियस. that? नींद बहुत सर मैं भी 8 घंटे की नींद पूरी कर देते हैं. पूरे करता हूँ, वो ब्रेक में भी कभी कभी ब्रेक में भी करना पड़ता है। Okay, now we'll close by asking, I have one question for both. Now, what is the advice you would like to give to the newcomers? Somebody who's starting this exam for the first time, fresher. What advice you will have to the fresher? So first I would say that
please don't run after a lot of sources and a lot of people to advise you. Okay, so I'll recap it. Don't chase sources and don't chase advisors. Okay? Because then you will get very confused. Have 2 3 reliable sources and understand that what are your strengths and what are the areas where you will need support and help. This is important. So secondly, I would say that don't run after motivation. Okay, that's a great point. I mean, we are in an industry, motivation works. Everybody is a motivator, and Harshita says, don't chase motivators. Nice, good, Harshita. I'm seriously impressed. It never works. Yes, true. It never works. For me, किसी को सुन लिया, कोई वीडियो देख ली, किसी ने बहुत समझा दिया कि पढ़ना है, वो 3 दिन तक आई वुड बी लाइक नहीं करना है, बट 4th डे इट वुड डाई डाउन. तो डिसिप्लिन हेल्प मी कि नहीं, देर इज अ रूटीन, I need to follow it 5 to 6 days. Then is See, the problem is people don't understand. Harshita, you raised a big point. Motivation is different, discipline is different. What you need is discipline, not motivation. To succeed, what you need is discipline. Not motivation is there today, tomorrow it's not there. Neeraj, say na? So it's all about discipline. Like Neeraj had discipline for 6 years. So it's discipline, not about motivation. So also I would say that have confidence inside you. There will be low points. You might score terribly in tests, and please don't judge yourself with the marks of test. When you read and when you attempt a test, don't judge yourself only on the basis of the marks of the test. Identify the areas which you read and could not. So basically what Harshita is trying to say is don't don't take the test scores to your heart. Use it to just know your weaknesses. Don't take the test scores to heart. Okay, that's a valid point. And sir, I would also say that please surround yourself with very optimistic people. Positive people. Okay, amazing. Trust in you and who would push you. So I remember after qualifying my prelims and when the mains was very near, I was in a terrible state. My health condition was very bad and I could not give my exam. I felt I would not be able to give my mains. But here again I would say 2 of my friends, they talked to me, the way they interacted with me, that made me realize कि one of them said कि 20 में से 10 क्वेश्चन ही करके आओ, don't leave. Okay. बस दे कर आओ. So if you have those people who trust in you and they push you to do that, I think that helps. Okay. That can do wonders. Harshita's advice to all the beginners. First one, limit your sources, limit your advisors. Second was don't take your test series scores to your heart. It's just test series only to identify your weaknesses. Third one, that's a very valid point. Sleep well, very important. Take care of your health, which is very important. And the best part was surround yourself with very optimistic people. Valid? Okay. And discipline, that's a key one. Not don't chase motivation, be disciplined. That's the mantra of Harshita. That's how she qualified. Remember that. Okay, Neeraj, what's your advice? सर इसी में ऐड ऑन करना हाँ, चाहूँगा. बताओ. मोटिवेशन की जगह सेल्फ मोटिवेशन. आप CSE एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो. जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप अपना और एफर्ट और बेहतर तरीके से दे पाओगे. और जैसे ही एडवाइज़र का बोला, तो मेरा भी पर्सनली यही है कि कुछ एक रहे एडवाइज़र, फैमिली तो है ही, साथ में कुछ एक दोस्त है, उन्होंने मतलब जो, क्योंकि बीच में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो हर स्टेज में एक सक्सेस का रहता है, तो वो सक्सेस को हम ज़्यादा अपने सिर पे ना ले ले, और या फिर जो लो पॉइंट आ रहा है वो उस पर हमको एक सपोर्ट करने के लिए रहे साथ में. So basically, it's not about advice, it's about mentors. What you need is one good mentor to hold your hand. जो सच बोलते हो आपसे, और आप उनके सच को समझने का भी ट्राई करते हो, तो ऐसा रहा. और इसके साथ ही सर तीसरा जो आप बताया कि डिसिप्लिन, उसको फुल फॉलो करें. One has to be disciplined. Okay, there's a saying like there are 2 kinds of pain: the pain of discipline, pain of regret. Choice is yours. Yes, exactly. Right? So either you suffer the pain of discipline or you suffer the pain of regrets. Right? So it's nice to be disciplined. Right? Great, amazing. Thank you to Harshita. Thank you, Neeraj. That was very interesting talk. And Harshita, thank you for breaking a lot of myths we have here. Thank you. It was a pleasure.